پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی ٹیچر جویریہ سعید۔ اپنے اس ویڈیو لیکچر سیشن 3 میں آپ کو آج آپ کی اردو کی کتاب قندیل ادب برائے جماعت سوم سے سبق کی بلند خوانی کرواؤں گی اور سبق کی تفصیلات سمجھاؤں گی، اور ہم کتاب کی مشق کا کچھ کام اپنے اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کریں گے۔ تو آئیے بچوں، اب ہم آپ کی اردو کی کتاب قندیل ادب برائے جماعت سوم سے صفحہ نمبر 36 کھولتے ہیں۔ صفحہ نمبر 36 یعنی 36 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبق ہے کینگرو۔ اب ہم سبق کے بقیہ حصے کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ میں سبق کی بلند خوانی شروع کر رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ سبق کی بلند خوانی کیجیے تاکہ آپ صحیح ہجوں اور تلفظ کے ساتھ اس سبق کو پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینگرو کو بعض اوقات پوری رات گھاس کی تلاش میں گھومنے پھرنے پر صرف چند مٹھی گھاس ملتی ہے۔ یہ حالت ان دنوں ہوتی ہے جب آسٹریلیا کا موسم سخت خشک ہوتا ہے اور دھوپ کی تیزی عروج پر ہوتی ہے۔ ایسے موسم میں مادہ کینگرو کا دودھ تک خشک ہو جاتا ہے اور ان کے بچے بھوک سے مر جاتے ہیں۔ اکثر کینگرو ایسے موسم میں میلوں کا فاصلہ طے کر کے ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں جو سرسبز ہوتے ہیں اور وہاں کا موسم قدرے بہتر ہوتا ہے۔ چونکہ شاداب علاقے کھیتوں کے قریب یعنی آبادیوں کے قریب ہوتے ہیں، لہٰذا ان کھیتوں تک پہنچتے پہنچتے انہیں کوئی نہ کوئی سڑک عبور کرنا ہوتی ہے۔ اس بڑی سڑک کو عبور کرنے میں کئی کینگرو گاڑیوں کی زد میں آ کر ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ گاڑیوں کی تیز روشنی میں یہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ آسٹریلیا میں اس قسم کے حادثات کی روک تھام کے لیے جنگلی جانوروں کے تحفظ کا ادارہ کام کر رہا ہے۔ کسی کینگرو کو حادثہ پیش آ جانے کی صورت میں وائلڈ لائف رینجرز، جو ہر وقت گشت پر ہوتے ہیں، فوراً جائے حادثہ پر پہنچ کر زخمی کینگرو کی مرہم پٹی کرتے ہیں، اور اگر کینگرو مر گیا ہو تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں آسٹریلیا کے شہر ویلز کے گیم رینجر جناب رابرٹ میکنزی اور ان کا بیٹا باب شاہراہ اعظم پر گشت کر رہے تھے کہ انہیں ایک ایسا کینگرو کا بچہ ملا جس کی ماں مر چکی تھی۔ باب کے کہنے پر اس کے والد نے کینگرو کے بچے کو گاڑی میں سوار کر لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ ہر صبح اسکول جانے سے پہلے باب بچے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا اور اپنے والد سے سوال کرتا، ہم حیوانوں سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ باب کا والد اسے جواب دیتا، میرے بیٹے، آج کل انسانوں میں پیار ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم میں سے بعض انسانوں نے حیوانوں کو دوست بنانا شروع کر دیا ہے۔ آئیے بچوں، اب میں آپ کو سبق کے اس حصے میں موجود مشکل الفاظ کے معنی سمجھاتی ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس وقت مشکل الفاظ میں سب سے مشکل لفظ ہے عروج۔ عروج معنی بلندی۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دھوپ کی تیزی عروج پہ ہوتی ہے، یعنی بلندی، بہت زیادہ ہونا، تیزی ہونا۔ عروج پہ ہونا یعنی بلندی پر ہونا، بہت اونچائی پر ہونا یا بہت زیادہ ہونا۔ مادہ کینگرو، مادہ کا مطلب ہوتا ہے فیمیل، یعنی فیمیل کینگرو، مدر کینگرو۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے یہاں پر سرسبز۔ سرسبز معنی ہرے بھرے، ہرے بھرے علاقے جو کہ سبزے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ شاداب، شاداب علاقے یعنی جو کہ سرسبز و شاداب یعنی بھرے بھرے کھیتوں کے علاقے۔ عبور کرنا، عبور کرنا مطلب پار کرنا۔
गाड़ियों की जद में आकर हलाक होना, जद में आने यानी गाड़ियों के बीच में आ जाना, गाड़ियों के सामने आकर हलाक हो जाना, गाड़ियों की तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ जाना यानी गाड़ी के अचानक से सामने आ जाना। गश्त करना यानी पहरा देना या पहरा देना या घूमना या चक्कर लगाना, जैसे चौकीदार रात के वक्त इलाके में गश्त करते हैं। इसी तरह यहाँ लफ्ज़ है गश्त करना। इसके बाद एक लफ्ज़ यहाँ नज़र आ रहा है बेटा मुश्किल, हैवानों, हैवानों यानी जानवरों। बच्चों ये थे इस सबक के मुश्किल अल्फाज। अब मैं आपको इस सबक के इस हिस्से की तफसीलात समझाती हूँ। इस सबक में हमें ये बताया जा रहा है कि केंगरू जो कि घास जिनकी वाहिद ग़िज़ा है, घास खा के ही वो अपना पेट भरते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जब ऑस्ट्रेलिया का मौसम सख्त गर्म हो जाता है और खुश्क हो जाता है, धूप की तेज़ी अपने उरूज पर होती है, तो ऐसे वक्त में मादा इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मादा केंगरू यानी फ़ीमेल केंगरू जो होती है, जो अपने बच्चों को फ़ीड करवाती है, दूध पिलाती हैं, उनका दूध तक खुश्क हो जाता है। लिहाजा केंगरू जो हैं ऑस्ट्रेलिया के दूसरे इलाकों में मूव करना शुरू हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के दूसरे इलाकों में मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं और मीलों का फासला तय करके वो ऐसे इलाकों में चले जाते हैं जो सरसब्ज़ व शादाब होते हैं, जहाँ फसलें ज़्यादा होती हैं या आबादी के करीब खेत ज़्यादा होते हैं। और लेकिन इस तमाम मरहले में ये होता है कि जब वो इन खेतों तक पहुँचने के लिए उनको कोई ना कोई सड़क अबूर करना होती है या मेन रोड पार करनी होती है, और इस मेन रोड को पार करने के चक्कर में वो अक्सर गाड़ियों की जद में आ जाते हैं, क्योंकि जब वो अक्सर केंगरू जो हैं, आप जैसे कि हमने पिछले सबक के पिछले हिस्से में पढ़ा कि रात को घास की तलाश में निकलते हैं, जब सन्नाटा हो जाता है, इर्द गिर्द के माहौल में सन्नाटा होता है, तो वो घास की तलाश में निकलते हैं। लेकिन जब रात के वक्त गाड़ियों की जब तेज़ लाइट्स उनकी आँखों पर पड़ती हैं तो उनकी आँखें अंधी हो जाती हैं, वो देखने से कासिर हो जाती हैं, और यही वजह होती है कि वो गाड़ियों की जद में आकर हलाक हो जाते हैं या हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इदारा कायम किया गया है, जिसको कि वाइल्ड लाइफ रेंजर्स का नाम दिया गया है। वाइल्ड लाइफ होती है जानवरों की लाइफ, वाइल्ड मतलब जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा। वाइल्ड लाइफ के रेंजर्स जो हैं वो उनके वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है, जिसमें वो अगर कोई जंगली जानवर ज़ख्मी हो जाता है, जैसे केंगरू ज़ख्मी हो जाता है, तो फ़ौरन उसको तिब्बी इमदाद पहुँचाते हैं, उसको फ़र्स्ट एड देते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। और अगर कोई केंगरू गाड़ी की जद में आके मर जाता है तो उस पर अफसोस का इजहार करते हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है वेल्स, यहाँ आप देख रहे हैं नाम लिखा हुआ वेल्स, के गेम रेंजर जनाब रॉबर्ट, ये उनका नाम है, जनाब रॉबर्ट मैकेंजी, और उनका बेटा बॉब, वो शाहराह आज़म यानी मेन रोड हाईवे, शाहराह आज़म यानी बड़ी शाहरा, बड़ी सड़क, मेन रोड जैसे हाईवे होती है, जैसे हमारे पास नेशनल हाईवे है, इसी तरह से वो हाईवे पर गश्त कर रहे थे, यानी अपनी ड्यूटी पे थे, पहरा दे रहे थे कि कहीं कोई जानवर गाड़ी की जद में आके हलाक ना हो जाए या ज़ख्मी ना हो जाए। तो उन्होंने देखा उनको एक ऐसा केंगरू का बच्चा मिला जिसकी माँ मर चुकी थी, और जो वो जनाब मैकेंजी, रॉबर्ट मैकेंजी थे, उनके बेटे बॉब ने उस बच्चे को, केंगरू के बच्चे को अपने वालिद से रिक्वेस्ट की कि इसको गाड़ी में बिठा लें। वो उसको गाड़ी में बिठा के अपने घर ले गया और रोज़ाना सुबह स्कूल जाने से पहले उस केंगरू से को प्यार करता, उसके ऊपर हाथ फेरता और उसका बहुत ख्याल रखता, और अपने वालिद से रोज़ाना एक ही सवाल करता कि हम हैवानों से इतना प्यार क्यों करते हैं। तो उसके वालिद एक ही जवाब देते कि बेटा हम आजकल इंसानों में प्यार ख़त्म हो गया है, इसलिए हम में से बाद इंसानों ने जानवरों को अपना दोस्त बनाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी इस सबक को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि बाद इंसान ऐसे भी हैं दुनिया में जिनको अल्लाह ताला ने इतना नर्म दिल दिया है कि वो जानवरों से भी प्यार करते हैं। वो सिर्फ इंसान से प्यार नहीं करते बल्कि जानवरों का भी ख्याल रखते हैं, और ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक, बाहर के ममालिक में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके ख्याल रखने के लिए बाकायदा वाइल्ड लाइफ रेंजर के इदारे कायम हैं, जो कि जंगली जानवरों और का ख्याल रखने के लिए उनकी वो दिन रात शाहराह मेन रोड्स पे या बड़ी शाहरा पे गश्त करते हैं, ताकि कि अगर कोई जानवर ज़ख्मी हो जाए या कोई हलाक हो जाए तो उस फ़ौरन मदद की जा सके, और ज़ख्मी जानवर की फ़ौरन तिब्बी इमदाद दी जा सके, और अगर वो हलाक हो गया तो उस पर वो अफसोस का इजहार करते हैं। यानी अगर इंसान एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो वो लोग जानवरों से भी प्यार करते हैं। आइए इस सबक को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमें ना सिर्फ इंसानों से प्यार करना चाहिए बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद जानवरों, जंगली जानवरों हो, चाहे वो जंगली जानवर हो या पालतू जानवर, उनका ख्याल रखना चाहिए। ये थी बच्चों इस सबक की तफसीलात।
प्यारे बच्चों, अब आप आ जाइए अपनी कॉपी के काम की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपकी उर्दू टेक्स्ट की कॉपी है। आप हमेशा की तरह सबसे पहले उर्दू टेक्स्ट की कॉपी खोलेंगे और इसमें तारीख़ के साथ इंडेक्स फिल करेंगे और जो सवालात आप कॉपी में करने जा रहे हैं वो यहाँ पर उन सवालात को तरतीब से उनके नंबर डालेंगे। सबसे पहले आप अपना कॉपी के काम में नया सफ़ा खोलिए। इंडेक्स बनाने के बाद होमवर्क या घर का काम लिखेंगे, तारीख़ डालेंगे, सवाल लिखेंगे, सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है, सुर्ख और भूरे केंगरू किस तबीयत के होते हैं? आप किताब के बुलंदखानी में पढ़ चुके हैं और तफसीलात में भी आप समझ चुके हैं कि सुर्ख और भूरे केंगरू किस रंग के होते हैं। सुर्ख केंगरू जफाकश होते हैं जबकि भूरे केंगरू इतने सख्त जान नहीं होते। ये सवाल का जवाब है जो कि आप आसानी से किताब में से देखकर यहाँ लिखेंगे। दूसरा सवाल है, खुराक की तलाश में उन्हें क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ती हैं? आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ जवाब लिख दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जवाब, केंगरू खुराक की तलाश में मीलों का फासला तय करके शादाब इलाकों की तरफ जाते हैं। ये दो सवालात हैं कि आप जवाबात लिखेंगे। कॉपी के अगले सफ़े पे आ जाइए बच्चों। होमवर्क या घर का काम लिखेंगे, तारीख़ डालेंगे, खाली जगह पुर कीजिए। पहली खाली जगह है, भूरे केंगरू डैश इलाकों में रहते हैं। सबक के बुलंदखानी में आप पढ़ चुके हैं कि भूरे केंगरू साहिली इलाकों में रहते हैं। दूसरी खाली जगह है, ऑस्ट्रेलिया के किसान केंगरू से डैश रहते हैं। बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के किसान केंगरू से नाराज़ रहते हैं क्योंकि उनकी खड़ी फसलों को चट कर जाते हैं। नंबर 3 है, केंगरू को अपनी डैश की बड़ी फ़िक्र होती है। केंगरू को अपनी हिफाजत की बड़ी फ़िक्र होती है क्योंकि जब वो रात को मीलों दूर घास की तलाश में निकलते हैं तो उनको गाड़ी की जद में आने का ख़तरा होता है, जैसे कि आपने सबक में पढ़ा था, इसलिए उनको अपनी हिफाजत की बड़ी फ़िक्र होती है। नंबर 4 है, गाड़ियों की तेज़ रोशनी में ये डैश हो जाते हैं। गाड़ियों की तेज़ रोशनी में ये अंधे हो जाते हैं। गाड़ियों की जब तेज़ लाइट्स, हेडलाइट्स उनकी आँखों पे पड़ती है तो वो देखने से कासिर हो जाते हैं, यानी अंधे हो जाते हैं। हम डैश से प्यार क्यों करते हैं? ये सवाल कर्नल रॉबर्ट मैकेंजी के बेटे बॉब ने उनसे किया था। आपने सबक में पढ़ा है बच्चों, आपको याद होगा कि हम हैवानों से प्यार क्यों करते हैं। यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? हैवानों। कॉपी का अगला सफ़ा खोलिए। यहाँ आप देख रहे हैं सवाल, अगला सवाल है, दिए गए गलत फ़क़रात को दुरुस्त कीजिए। पहले होमवर्क लिखेंगे, तारीख़ डालेंगे, सवाल पर है, दिए गए गलत फ़क़रात को दुरुस्त कीजिए। यानी यहाँ कुछ फ़क़रात गलत दिए हुए हैं, उनको आपको उनकी इस्लाह करनी है, उन फ़क़रात को आपने सही करके लिखना है। पहला जुमला है, 10 रुपये का प्याज लाओ। बच्चों, आप जैसा कि देख रहे हैं 10 रुपये का प्याज लाओ। प्याज अमूमन मुअन्नस के सेंस में इस्तेमाल होती है, मुज़क्कर के सेंस में इस्तेमाल नहीं होता प्याज का लफ्ज़। प्याज लाई जाती है, लाया नहीं जाता। तो जुमला हो जाएगा 10 रुपये का के बजाय आ जाएगा की, प्याज लाओ। ये जुमला आप दुरुस्त गलत फ़क़रे को आप दुरुस्त करके लिखेंगे तो जुमला हो जाएगा 10 रुपये की प्याज लाओ। दूसरा जुमला है, आज की अखबार कहाँ है? अखबार हमेशा बेटा मुज़क्कर के सेंस में होता है, मुअन्नस के सेंस में नहीं होता। मुअन्नस के सीगे में उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अखबार होता है, आज का अखबार कहाँ है। दुरुस्त होगा जुमला, आज का अखबार कहाँ है। तीसरा जुमला है, ये पत्थर बहुत भारा है। ये गलत जुमला है, इसको आप सही करके लिखेंगे तो हो जाएगा, ये पत्थर बहुत भारी है। पत्थर भारी होता है, भारा का लफ्ज़ गलत है। नीली स्याही से लिखो, यानी ब्लू इंक। नीली स्याही, स्याही कहते हैं इंक को, नीली स्याही, तो ये जुमला गलत है। इस जुमले को आप दुरुस्त करेंगे तो हो जाएगा, नीली रोशनाई से लिखो। स्याही या इंक को उर्दू की सही फॉर्मेशन में कहते हैं रोशनाई, यानी लिखने की चीज़ रोशनाई। नीली रोशनाई से लिखो। पांचवा जुमला है, बुढ़िया औरत ठोकर खाकर गिरी। इस जुमले को आप सही करेंगे तो बुढ़िया औरत ठोकर खा के गिरी के बजाय बुढ़िया का लफ्ज़ यहाँ पे मायूब सा महसूस हो रहा है, तो बुढ़िया के बजाय आ जाएगा बूढ़ी। बूढ़ी औरत ठोकर खाकर गिरी। इस तरह 5 जुमले आप इन 5 गलत जुमलों को दुरुस्त करके लिखेंगे। अब बच्चों, आपकी कॉपी का अगला काम सवाल नंबर 7 है, खाली जगहों पर फ़ेल हाल लगाकर जुमले मुकम्मल करें। इसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फ़ेल हाल होता क्या। इस आपके आसानी के लिए यहाँ मैंने फ़ेल हाल की तारीफ़ लिखी है। फ़ेल हाल
سب سے پہلے بچوں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے فعل کیا ہوتا ہے. فعل وہ جملہ، وہ کلمہ جس میں یا وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، یعنی ورب. انگلش میں سے ہم ورب کہتے ہیں. اور فعل حال یعنی وہ ورب جو کہ پریزنٹ میں جو اپلائی ہو رہا ہو یا جو کام حال میں ہو رہا ہو، موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو، اسے فعل حال کہتے ہیں. فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے، فعل حال کہلاتا ہے. یہ میں نے فعل حال کی تعریف لکھ لی ہے. یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پریزنٹ میں پایا جائے، حال میں پایا جائے، موجودہ وقت میں پایا جائے، اسے فعل حال کہتے ہیں. جیسے اسلم کھانا کھاتا ہے، تو اسلم کھانا کھاتا ہے، اس جملے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلم اسی وقت کھانا کھا رہا ہے، حال میں ہی کام ہو رہا ہے، تو یہ فعل حال کا جملہ ہوا. اسی طرح آپ اس مشق کو فعل حال کے لگا کر جملوں کو مکمل کریں گے. پہلا جملہ ہے شاہد سیب. اس جملے کو فعل حال کے تحت آپ مکمل کریں گے تو جملہ بن جائے گا شاہد سیب کھاتا ہے یا شاہد سیب کھا رہا ہے. کوثر کھانا، کوثر کھانا کھاتی ہے یا کوثر کھانا پکا رہی ہے، یعنی پریزنٹ میں کام ہو رہا ہے، حال میں کام ہو رہا ہے. ہم پیدل جا رہے ہیں، ہم پیدل جاتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. نمبر 4 ہے وہ روزانہ اخبار پڑھتا ہے، وہ روزانہ اخبار لاتا ہے یا وہ روزانہ اخبار خریدتا ہے. یہ سب پریزنٹ یا حال کے جملے ہیں، یہ فعل حال کا جملہ بن جائے گا. آخری جملہ ہے ریل گاڑی پٹری پر. ریل گاڑی پٹری پر چلتی ہے، ریل گاڑی پٹری پر جا رہی ہے. اس طرح سے ان لفظوں کو آپ جب فعل حال کے جملوں میں تبدیل کریں گے تو اس طرح سے یہ فعل حال کے جملے بن جائیں گے. بچوں یہ تھا آپ کی کاپی کا کام جو آپ اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں ہجوں، نقطوں اور شوشوں کا دھیان رکھتے ہوئے انتہائی صفائی کے ساتھ کریں. مجھے امید ہے بچوں کہ آپ کو سبق کی تفصیلات سمجھ میں آ گئی ہوں گی، سبق کی بنیاد خوانی آپ نے اچھے طریقے سے کی ہوگی اور آپ اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں یہ تمام کام ہجوں، نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے صفائی کے ساتھ کریں گے. اس کے ساتھ ہی بچوں اب مجھے اجازت دیجیے، اپنے ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.